My name is Jagriti Avasthi, and I secured All India Rank 2 in UPSC Civil Service Examination 2020. Um, I'm here to share my strategy with all of you in short as to what I did and that benefited me in this examination and what can I share with you. So, here are my 2 cents on preparation for this examination. First thing first is that you have to be very, very thorough with the syllabus. So, whenever you start the preparation, please pick up a copy of the syllabus, go through it. I know you won't be able to make much of what it means and what these different topics entail. Just go through them, repeatedly read it. What this process would do is that this would make sure that on entire टॉपिक्स दैट यूपीएससी आस्क्स इट स्ट्रेट गोज इनटू योर हेड तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा कि यूपीएससी में एटलीस्ट टॉपिक्स कौन से पूछे जाते हैं द नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट यू मस्ट डू एंड दिस एक्सरसाइज इज नॉट जस्ट फॉर दोज हु आर स्टार्टिंग विद देयर प्रिपरेशन बट ऑल ऑफ देम even if you are in the preparation and you haven't done this exercise, please do it. It is a really beneficial exercise. Next thing that you should do is to pick up the copy of previous year questions. अगर मैं आपको बोलूं कि पूरी यूपीएससी प्रिपरेशन में कोई गोल्डन रूल है या कोई गोल्डन ऐसी चीज है जिसको मैंने फॉलो किया हो एंड आई हैव बीन बेनिफिटेड देन इट इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सॉल्व कॉपी प्रीलिम्स की भी मेंस की सॉल्व कॉपी मत भी लीजिए टॉपिक वाइज ईयर वाइज सेग्रीगेशन एंड टॉपिक वाइज सेग्रीगेशन होना चाहिए कि भाई अगर सपोज 1857 का रिवॉल्यूशन है तो उसमें प्रीलिम्स में पहले कौन से क्वेश्चंस आए थे मेंस में कौन से क्वेश्चंस आए थे जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चंस एज वेल इफ अगर आप हिस्ट्री उठा रहे हैं इफ यू आर गोइंग टू कवर हिस्ट्री देन जस्ट हिस्ट्री का सिलेबस पढ़ लीजिए उसके आए हुए प्रीलिम्स के और मेंस के क्वेश्चन पढ़ लीजिए यदि आपको इंग्लिश को समझने में दिक्कत होती है तो उसका आप हिंदी ट्रांसलेशन क्योंकि यूपीएससी के जो पेपर्स हैं वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही हिंदी में भी अवेलेबल होते हैं just go through it understand what UPSC is asking इस प्रोसेस से you'll get an entire overview of what UPSC exam is about the topics the standard of the questions so this is one thing second thing should be finalizing your book list so I'll just reiterate my book list that I use for this entire examination let's go topic wise so for polity Lakshmikant and class 11th NCERT Indian Constitution at Work these two books will be really useful to you so just go through them previous year questions and this would do I mean more or less this is what and also I took coaching so for mains only for mains I took help of the notes that they provided there and those notes I've uploaded on my telegram channel as well so you can have a look there उनको क्योंकि वो थोड़ा सा vocabulary develop करने में help हो जाती है this was for polity let's come to history ancient history के लिए I had my own notes all right I had my own notes उसमें मैं सिर्फ ऐड ऑन करती थी फ्रॉम तमिलनाडु की जो किताब है इवन दोज नोट्स आई स्कैन एंड पुट ऑन माय टेलीग्राम चैनल सो मेक श्योर कि आप बुक्स जरूर पढ़ें यू कैन गो फॉर तमिलनाडु बोर्ड बुक और यू कैन गो फॉर आर एस शर्मा ऑल्सो आर एस शर्मा इज अ बिट heavy I think Tamil Nadu board is a much lighter version of the same whenever you are reading ancient history go through art and culture parallelly suppose आप अगर इन इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का अपना आर्ट एंड आर्किटेक्चर होता था सो प्लीज लिंक देम for art and culture read from fine arts NCERT and additionally you can supplement what I did additionally was Nitin Singhania sir's handwritten notes not the book I read the handwritten books that are available in the market so you can buy it from a photocopy center and just go if you have read Indus Valley Civilization from the book you can just go and read from the notes and combine them into one तो आपको एक जगह सारी चीजें रखनी है आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा उसमें आप ऐड कर लीजिए फाइन आर्ट्स के एनसीईआरटी से उसमें आप ऐड कर लीजिए अपने नितिन सिंघानिया सर के नोट से पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को पढ़िए उनके सॉल्यूशंस को पढ़िए उन टॉपिक्स को थोड़ा और गहनता से पढ़िए जैसे अगर आप देखेंगे कि बुद्धिज्म और जैनिज्म पे क्वेश्चंस काफी डिटेल में आ जाते हैं सो टू मेक श्योर कि उनको आप छोड़ ना दें तो उसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए एक बार अलग से पढ़ लीजिए जो टॉपिक पूछे जाते हैं उनको गूगल करके पढ़ लीजिए इस तरह से यू आर वेरी स्मार्ट इन कनेक्टिंग कलेक्टिंग एंटायर the volume the content of each and every topic this was for ancient history medieval के लिए तो I just read Tamil Nadu board की class 11th की class 11th की book है हाँ
पीछे साइड में दिया हुआ है, बिकॉज उस पर कॉस्ट बेनिफिट रेशो उतना नहीं है. फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री आई डिड Tamil Nadu board, and all these Tamil Nadu board are the old edition books. So for that, I did class 12th part 2. In its part 2, they have mentioned this world history brief में, क्योंकि उसका रीजन ये है कि अगर आप बहुत एफर्ट डालेंगे तो उतना आपका आउटपुट नहीं मिलेगा. द क्वेश्चन इफ इट इज सिंपल तो वो सबके लिए सिंपल होगा. इफ इट्स डिफिकल्ट इट्स गोना बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, सो यू वोंट बी एबल टू डू इट ईदर वे. सो डोंट स्पेंड टू मच टाइम. इन माई आई वॉज लकी कि एक भी क्वेश्चन नहीं आया था वर्ल्ड हिस्ट्री से. कमिंग टू जोग्राफी, सो जोग्राफी के लिए आप 4 एनसीईआरटीज 11th और 12th की थरली पढ़ लीजिए. यूट्यूब पर जो मृणाल सर का चैनल है उस पर राजतनिल सोलंकी मैडम ने पूरी प्लेलिस्ट पढ़ी है वीडियोस की, उनको देख लीजिए. उनको सिर्फ समझ लीजिए देख करके, और जो भी वो प्लेसेस बोलेंगी आपको लगेगा कि दीज प्लेसेस आर नेवर हर्ड ऑफ, लाइक शील से कटंगा प्लेटो और सम रिवर्स दैट यू हैव नॉट हर्ड ऑफ. नोट कर लीजिए एंड जस्ट मैप देम. उनको अपने एटलस पे जाके आप जरूर देखिए कि आफ्टर ऑल ये जगह हैं तो हैं कहाँ. दिस विल हेल्प यू गेन अ गुड आइडिया ऑफ द ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड ऑन दैट. मैपिंग अपनी खुद करिए. ऑलमोस्ट आप सारी जितनी भी जगहें इंपॉर्टेंट हैं, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी जगहें पढ़ने के लिए मिलेंगी, उनको मैप पर बना लीजिए. आई वंस अगेन आई रीट्रेट कि मेरी ये पूरी बुक लिस्ट जो मैं आपको बता रही हूँ, जितने भी नोट्स बता रही हूँ, मैपिंग बोल रही हूँ, ये मैंने अपने सारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए हैं. इट इज जागृति_AIR2. अगर आपका मन करे आप जाके वहां पे एक बार देख भी सकते हो, सो यू विल गेट अ फेयर आइडिया कि मैं मैप कैसे बनाती थी स्टेट वाइज. जिससे सपोज इंडिया का मैप लिया, एक पर्टिकुलर स्टेट को जूम करके उसका प्रिंट आउट ले लिया, फिर उस स्टेट में जो भी इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं या जो भी इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, जो इम्पोर्टेंट जगह हैं, उनको उसमें मार्क कर लेती थी. तो दैट बिकम्स ईजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड एंड रिवाइज लेटर. सो दैट कैन बी वन. ज्योग्राफी के लिए इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, बट यू हैव टू हैव अ वेरी वेरी थरो कमांड ऑन मैप्स. यू हैव टू हैव अ थरो कमांड ऑन द 4 एनसीईआरटीज. आप सोलंकी मैडम की अगर वीडियोस देख लेंगे तो यू विल हैव अ फेयर आइडिया. कंसेप्ट डेवलप करने में आपको हेल्प हो जाएगी. दिस इज वन थिंग फॉर ज्योग्राफी. ज्योग्राफी के बाद में लेट अस कम टू एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट के लिए आप क्लास 11th एनसीईआरटी की पार्ट 2 का लास्ट चैप्टर जो है एनवायरमेंट केमिस्ट्री वो, और बायोलॉजी का जो क्लास 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी में एक पूरी यूनिट है 4 चैप्टर्स की, बाय द नेम ऑफ इकोलॉजी. वो पूरी यूनिट है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए. शंकर आईएएस की बुक पढ़ लीजिए. देखिए वन स्टॉप सोल्यूशन नहीं है एनवायरनमेंट में, इट्स अ वेरी डायनामिक टॉपिक. और वैशाली आनंद मैडम का एक टेलीग्राम चैनल चलता है जिसमें वो बहुत सारे आर्टिकल शेयर करती हैं. एमसीक्यूज मत करिएगा उनके चैनल से, वो बहुत डिटेल लगते थे, मैं भी नहीं करती थी. बट अगर उन्होंने कोई रिपोर्ट शेयर की हुई है, कोई आर्टिकल शेयर किया हुआ है, तो उसको प्लीज देख लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा. वो अच्छे आर्टिकल्स होते हैं, आपको मेंस में काम आएंगे. या आप चाहे तो ये एक्सरसाइज आप सिर्फ मेंस के लिए करिए एनवायरनमेंट में. जो मैम का मैंने चैनल बताया है कि आप उसमें से आर्टिकल्स पढ़ लीजिए, उनमें से कुछ रिपोर्ट्स वगैरह शेयर करती हैं, रिपोर्ट्स की समरी शेयर करती हैं, वो आप कर सकते हैं. दैट यू कैन डू. साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए तो आप कोई भी है ना करंट अफेयर्स की या कोई भी किसी भी जो आपको इंस्टीट्यूट अच्छा लगता हो उसकी ऑनलाइन मैनुअल ले लो, उसको पढ़ लो. जिस टॉपिक में दिक्कत हो उस टॉपिक को गूगल करके आप समझ लो. कोई वन स्टॉप सोल्यूशन एज सच नहीं है. चाहे तो फोटोकॉपी सेंटर्स से राहुल शंकर सर के नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स अगर मिल जाए तो वो खरीद लीजिएगा, उसको पढ़ डालिएगा. दैट विल हेल्प यू. बाकी तो करंट अफेयर्स से ऑलमोस्ट हो जाता है. देन व्हाट एल्स इज रिमेनिंग. इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स के लिए आपको एक तो 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. दैट विल गिव यू good fodder for mains and also for essay. Apart from that, you can read any base material. See, it can be Shriram IAS का notes, Vision IAS का notes, और मृणाल सर का जो अनअकैडमी पे कोर्स चलता है उसके हैंडआउट्स. एंड ऑल ऑफ दिस इज अवेलेबल. ऑलराइट. सो वट एवर यू फील लाइक, इसमें से जो भी आपको ठीक लगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए या जो भी है. सो उनमें से एक कोई बेस मटेरियल बना करके आप पढ़ लीजिए. इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक. सो मेजर यही सब्जेक्ट्स हैं. इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए व्हाट आई डिड वाज कि भाई आप मेंस 365 ले लो. विजन आईएएस की आती है मेंस 365, जहां भी मिले वहां से आप ले लीजिए. ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ. उसको प्रिंट करिए, एक साइड ब्लैंक और एक साइड प्रिंटेड. उसको पढ़िए. सपोज आप इंडिया नेपाल पढ़ रहे हैं, उसको समझ लीजिए, पढ़ लीजिए. उसके बाद आप गूगल करिएगा सिविल्स डेली फॉरेन पॉलिसी या सिविल्स डेली इंटरनेशनल रिलेशंस, तो एक पेज ओपन होगा जिसमें बहुत सारे ना कंट्रीज
ऐसे मेंशन होंगे इंडिया नेपाल, इंडिया चाइना, इंडिया बांग्लादेश। उस पे आप क्लिक करोगे तो क्रोनोलॉजिकली जो एडिटोरियल्स आए हैं, जो आर्टिकल्स आए हैं न्यूज़पेपर्स में, वो आपको मिल जाएँगे। उसको आप ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के तक के आप पढ़ लीजिए। देखिए लेटेस्ट वाला सबसे ऊपर होगा, फिर धीरे-धीरे नीचे आता जाएगा। तो उसमें फिर आप जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लगे, तो जो आपका ब्लैंक साइड है मेंस 365 का, उसमें ऐड कर लीजिएगा। तो क्या रहता है कि एक अच्छा रिच कंटेंट एट वन प्लेस यू विल गेट। ओके, सो दिस इज व्हाट आई डिड फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस। उसका काफी कुछ वर्ल्ड मैपिंग से भी है, तो आपने जो मैपिंग वगैरह की हुई होगी, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू। इंटरनेशनल रिलेशंस इज डन। गवर्नेंस के लिए सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट की समरी ऑनलाइन आप टाइप करिए, सेकेंड एआरसी रिपोर्ट समरी पीडीएफ। जो अच्छी लगे उसको प्रिंट आउट लेके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें से निकाल के, अब देखिए आप रिपोर्ट पे से क्वेश्चन नहीं आएगा कि बताइए सेकेंड एआरसी रिपोर्ट ने क्या रिकमेंडेशन दिया था। दिस आर फॉर फॉर मेंस। आप मेंस में किसी क्वेश्चन में लिख सकते हैं कि सेकेंड एआरसी रिपोर्ट हैज रेकमेंडेड दिस एंड देन यू कैन जस्ट गिव रिकमेंडेशंस, अगर वे फॉरवर्ड पूछा है। ऐसे में भी कभी कभार अगर हुआ तो आप कोट कर सकते हो। वैसे आइडियली यू शुड नॉट बी टू स्कॉलरली इन योर एसेज। सो एक ये चीज हो गई।